Good evening, everyone. I welcome you all for the webinar. Am I audible? Yes. Okay. So today we are here for launch of our new product. Before that, I'll first introduce to you Mars platform. Here we have already launched 3 to 4 of our products. I'll take you uh, I'll take you all through all the products. Mr. Market, which is a passive investment product based on the ETFs. Second was our Alpha 11, investing into the leaders. Last week, we recently launched our new product, Iconic, which is based on quality and quant. And today, it is our turn to launch our new product with collaboration with Piyush sir. For more details, I'll hand over to Tejas sir. Yeah. Thank you, Mansi, and I think it's uh, it's always happy to see you guys. I mean, we are 133 participants, including me. So, how we started with Yellow Jersey. So I'll talk a few lines on our collaboration. So I know Piyush since last 6 7 years, and before starting anything with Piyush or his firm Yellow Jersey, I'm really thankful to the Bhavesh bhai. He's the catalyzer for these collaborations. So we started with our own fund, and the performance is superb. I'll talk about the performance part also. But before going through the product, let me introduce today's main speaker, Piyush Saravgi. He will talk on his product, how he designed the product, what are the philosophy, what are the performance, how we select the stocks and everything. So Piyush is a good friend. He run a company called Yellow Jersey Investment Advisory Firm. It is a CB registered. Um, so Piyush is a CFA. He has cleared all three levels. So he's a chartered financial analyst. He's completed his economics from Mithibai College, Mumbai, and he represented himself as in an international business peace platform. So he is in finance since 2014. His formal entry into stock market, but before that, वो काफी सालों से is into stock market, and he floated the firm Yellow Jersey Investment Advisor in year 2017. He's a reader. I know this guy is very well. So he's a avid reader. He love to meet new people. He is a various part of the different organizations like the Indus Entrepreneurs of Surat, Rotary Club, BNI, and CFA Society. He also practice Vipassana. I hope many of you must be knowing the Vipassana meditation techniques, or you must be knowing some of the legendary investors like Nemish Bhai, Manish Chokhani, Durgesh Bhai Sa. These all are the the avid practitioner into Vipassana, and I'm happy. Piyush is also the doing practice of Vipassana meditations. If I talk about a few lines about his product, so with joint collaborations, we are going to launch Jainam YJ Boost product. So basically, it is a 20 to 25 stocks portfolio. Yes, it is a multi-cap portfolio, but most of the stocks are, the mid-cap kind of stocks. We started with Piyush. We gave our own fund in November 2019. So exactly, it is around 20 months, and the return so far is 47% CAGR. I am the witness about few of his multi-baggers from the fund that we already given. I think without taking much time, it will be injustice if I continue talking about these products. So better let me hand over to Piyush. Piyush, the stage is yours, and I request Piyush to continue with new product, and then we'll go through how you can be part of this product, how you can आप आपके आपका पैसा आपके क्लाइंट का पैसा कैसे इसमें इन्वेस्ट करवा सकते हो थ्रू द मार्स प्लेटफॉर्म. So we will cover everything, and I request all of you, आपके जो भी questions हो, you can write into chat box, you can unmute yourself, and you can ask to any of us. Me, Piyush, Mansi, my entire team is available. So Piyush, uh, Thank you, Tejas Bhaiya. Speaker बंद करो.
Thank you, Tejas, for the wonderful introduction and personal thanks to you. And I would also like to thank Mr. Milan Parekh, Deshant, Dilip sir, Bhavesh Via, and the entire team of Janam for making it through and giving us this amazing platform to showcase. Now, speaking about Yellow Jersey Boost, ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के तरीके हैं. वाई डू वी नीड अनदर पोर्टफोलियो, या फिर हम ऐसा क्या करते हैं? पहली बात, मैं थोड़ा बेसिक इंट्रो देता हूँ. बूस्ट मतलब अर्निंग बूस्ट की बात कर रहे हैं, इससे ये नाम आया है बूस्ट. हमारा बेंचमार्क S&P BSE 500 है. नंबर ऑफ स्टॉक्स पोर्टफोलियो में 20 से 25 स्टॉक रखेंगे. हम ये पूरा वेबिनार अपने हिंदी में लेंगे, इंग्लिश या गुजराती ये में भी ले सकते हैं, बट हिंदी ऑडियंस का प्रेफर्ड चॉइस है. हम इस पोर्टफोलियो को एक साइंटिफिकली वे में डाइवर्सिफाई करके चलते हैं, जिसमें एटलीस्ट 10 सेक्टर्स के आसपास आपके कवर हो जाते हैं. साइंटिफिक डाइवर्सिफिकेशन मतलब ये हुआ कि सिर्फ नाम के लिए डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, रियल में डाइवर्सिफिकेशन है. अगर एक सेक्टर को अफेक्ट हो रहा है कोई चीज, तो दूसरे तक नहीं आएगा या तीसरे तक नहीं आएगा. इसका रीबैलेंसिंग एक्टिवली मैनेज्ड है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर डेट को हम रीबैलेंस करते हैं. दिस इज एन एंटायरली एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो. टाइम होराइजन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो audio is low. Audio is low. Okay, I'll try to be louder. टाइम होराइजन जो हम बात कर रहे हैं वो मिनिमम 2 से 3 साल के टाइम होराइजन की हम बात करते हैं. अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 3 साल के लिए जो आप पैसा इन्वेस्ट कर सको, उसी को आप इन्वेस्ट करिए. एंड वी सजेस्ट कि आप 5 इयर्स तक इस पैसे को इन्वेस्टेड रखिए. एक्सपेक्टेड रिटर्न शुड बी इन द रेंज ऑफ 16 to 20%. ये थी बात एक्सपेक्टेशन की. अब बात करते हैं इस पोर्टफोलियो ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है. In the past, अब past performance में मत जाना, but in the past, because of this earning boost ideology, we have delivered a return of around 47.5% CAGR since November 2018. Against which Nifty Midcap has returned around 15.8% CAGR and Nifty has returned around 15.23% CAGR. हालांकि बात रिटर्न से स्टार्ट नहीं होती है, बट अब देखते हैं ये रिटर्न आया कैसे. ऑब्जेक्टिव क्या है इस पोर्टफोलियो का? ऐसी कंपनी सिलेक्ट करो जहां पे अर्निंग खूब होने वाली हो. अगर आज कंपनी 100 करोड़ कमा रही है तो अगले 3 साल में कम से कम 200 करोड़ कमाए. एंड दूसरा कि सेफ्टी के साथ, ऐसा नहीं कि अच्छी चीज है तो कोई भी वैल्यू हम देंगे उसको. मैं आपको रन करता हूँ एकदम ब्रीफ मैनर में हमारा रिसर्च प्रोसेस क्या होता है. हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से, कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करने से और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने से. एंड देन वी हैव अ वेरी इन डेप्थ चेकलिस्ट ऑफ 500 पॉइंट्स, जो हम हर कंपनी को उस चेकलिस्ट के थ्रू जाना पड़ता है. जैसे कोई भी ऑपरेशन के अंदर घुसने से पहले एक डॉक्टर एक पूरी चेकलिस्ट फॉलो करता है कि सारे यूटेंसिल्स है या नहीं, मेडिसिन है या नहीं, नर्स चेक करती है. वैसे हमारे कंपनी को इन्वेस्ट करने से पहले सारे चेकलिस्ट के पॉइंट्स विजिट करते हैं. आफ्टर दैट वी गो एंड विजिट द फैक्ट्री ऑफ द कंपनी. अगर फैक्ट्री एक्सेसिबल है तो हम फैक्ट्री विजिट करते हैं. मैनेजमेंट से मिलने की जरूरत है तो मैनेजमेंट से मिलते हैं. देन कंपनी के सप्लायर्स, कस्टमर्स, ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है. ये है हमारा रिसर्च प्रोसेस. एक स्टेप उससे पहले जाते हैं. इंडिया के अंदर 5000 लिस्टेड कंपनी है रफली. हमें कितनी चाहिए? 20 से 25. अब आप 20 से 25 कंपनी में कैसे आओगे 5000 कंपनी से? तो हमने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन पैरामीटर्स रखे हुए हैं. अगर 1 करोड़ के ऊपर की कंपनी देखो तो 4000 कंपनी होती है. आप लोग को अगर आइडिया हो तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई भी कर सकते हैं. अगर मैं वहां पे फिल्टर लगा दूं कि 1000 करोड़ की कंपनी रखनी है, एंड 1000 करोड़ क्यों? क्योंकि एक सर्टेन साइज के ऊपर हमें हमारा पैसा इन्वेस्ट करना है. जिस मैनेजमेंट को आइडिया हो कि भाई एक बड़ी कंपनी को और बड़ा कैसे बनाना है, हमें सिर्फ उसमें ही इंटरेस्ट है. सो हम क्या करते हैं, मिनिमम 1000 करोड़ के मार्केट साइज की कंपनी हम देखते हैं. जैसे ही हमने ये फिल्टर लगाया, अराउंड 3000 कंपनीज अपने फिल्टर से बाहर हो जाती है. कितनी बची? 850-900 कंपनीज के आसपास बचती है. उसके ऊपर एक छोटा सा फिल्टर और लगाते हैं हम कि कम से कम 300-400 करोड़ की तो सेल होनी चाहिए. वापस 800 कंपनी बची. फिर थोड़े बहुत बेसिक फिल्टर और लगाते हैं हम कि भाई प्रॉफिट होना चाहिए, कंपनी प्रॉफिट पे ग्रो होनी चाहिए, पर शेयर 1 रुपए की अर्निंग तो होनी चाहिए. जैसे ही हम ये सब लगाते हैं 500 कंपनी बचती है. फिर थोड़े की पैरामीटर्स हम लगाते हैं कि भाई कंपनी के अंदर कर्जा नहीं होना चाहिए, और थोड़े बहुत पैरामीटर्स लगाते हैं हम कि कंपनी में प्रमोटर के पास शेयर तो खुद के पास होना चाहिए, कम से कम 25% तो होल्डिंग हो. आप मानेंगे नहीं, जहां हमने 5000 कंपनी से शुरू किया था, हम 300 कंपनी के पूल पे आ जाते हैं. ये थे बेसिक फिल्टर पैरामीटर्स. हमें क्या करना है, 5000 में से 20 से 25 ऐसी कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसमें अर्निंग खूब स्पीड में ग्रो कर रही है. उसके लिए हमें बाकी कंपनीज को निकालना भी है, तो वो निकालने के लिए हमने ये बेसिक फिल्टर पैरामीटर्स यूज करते हैं. नाउ द बैकबोन. बैकबोन क्या होता है?
एक इंसान के लाइफ के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर बैकबोन ही एक ऐसा ऑर्गन होता है जो आपको पूरी स्ट्रेंथ देता है। अब वैसे ही हमारे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का पूरा बैकबोन है हमारी खुद की डिवाइस की भी 5G स्ट्रैटेजी। जो 500 पॉइंट की चेकलिस्ट की मैं बात कर रहा था, उसको मैंने बहुत ही सिंपल वे में 5 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप अपने खुद के बिजनेस में भी अप्लाई करते होंगे। आज आप आपका जो बिजनेस रन कर रहे हो उसमें आप चाहेंगे कि ये 5 पॉइंट तो एटलीस्ट अप्लाई हो ही। पहला पॉइंट क्या है, पहले इसको हम ब्रीफली देखते हैं, फिर मजा कब आएगा जब हम रियल लाइफ केस स्टडी के साथ में इसको समझेंगे। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू में दूंगा, उसके बाद में कुछ कुछ केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे जहां पे हमने इस चीज को अप्लाई किया है। फर्स्ट पॉइंट, ग्रोइंग सेल्स एंड अर्निंग। मैंने आपको जैसे कब से अब तक आपने 4-5 बार सुन लिया होगा कि ग्रोइंग सेल एंड अर्निंग, ग्रोइंग सेल एंड अर्निंग। मुझे ऐसी कंपनी में ही इंटरेस्ट है जहाँ पे सेल्स एंड अर्निंग्स इंक्रीज हो रही हो। जहाँ पे सेल्स एंड अर्निंग्स नहीं है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। बट हर चीज को नंबर देना जरूरी है। 20% की मुझे सालाना ग्रोथ चाहिए, या तो उसकी सेल्स ग्रो होनी चाहिए 1000 करोड़ से 1200, 1600 और 2000 करोड़, या तो प्रॉफिट ग्रो होना चाहिए। आज 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा हूं तो 3 साल में 300 करोड़, 200 करोड़ समथिंग। ये पहला फिल्टर, ये पहला क्राइटेरिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा, ग्रोइंग सेल और अर्निंग को सस्टेनेबल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा मैनेजमेंट। अब एक अच्छा मैनेजमेंट कहां से आएगा, और मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो वो कैसे दिखेगा? वो दिखता है मैनेजमेंट के डिसीजंस के अंदर, उसके स्किन इन द गेम के अंदर। मैनेजमेंट एक ऐसी क्वालिटेटिव चीज है कि जो कि जिस पर हम लोग कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं रख सकते, बट कुछ कुछ चीजों को हमें नंबर्स के वे में डिफाइन करना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्किन इन द गेम। आज मैनेजमेंट जो है उसका कितना पैसा उसके खुद की कंपनी में लगा हुआ है। अगर मैं आज 1000 करोड़ की कंपनी का मालिक हूं और सिर्फ 2% इक्विटी मेरी है, बाकी 98% गांव का है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कंपनी ग्रो करे क्या ना करे, मुझे मेरे कमाई से फर्क पड़ेगा। तो हमने क्या बेसिक फिल्टर रखा कि कम से कम 25% तो भाई मैनेजमेंट के पास खुद के पास होना चाहिए। ये एक बेसिक फिल्टर है। हम बाकी फिल्टर्स भी जैसे डिस्कस करें, गुड फाइनेंशियल्स। आज मोस्ट ऑफ अस, हम सूरत गुजरात से होंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो टेक्सटाइल बहुत बड़ा सेक्टर है। आज टेक्सटाइल के अंदर जो चाहे 100 करोड़ की सेल एक दिन में कर सकता है, बट सर पेमेंट कहां से आएगा? आज सेल आप कर लोगे बट पेमेंट तो जरूरी है। तो हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना जहां पे पेमेंट या तो एडवांस में आ रहा हो या पेमेंट की धारा फिक्स हो। आज सेल्स करना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्किंग कैपिटल भी उसका प्रॉपर्ली मैनेज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, गुड फाइनेंशियल, मतलब कंपनी के ऊपर 1000 करोड़ की सेल है बट 900 करोड़ का कर्जा है, तो ड्यूरिंग बैड टाइम कोविड आप ये सोच में पड़ रहे हो कि भाई मैं कर्जा कहां से चुकाऊं या फिर ब्याज कहां से चुकाऊं उसका। जबकि 1000 करोड़ की सेल के सामने अगर 100-150 करोड़ का कर्जा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब है गुड फाइनेंशियल, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग है। फोर्थ पॉइंट, मार्केट लीडर। मार्केट लीडर से फ्रेंड्स मेरा मतलब ये नहीं है, एंड डियर व्यूअर्स, मेरा मतलब ये नहीं टीसीएस, इन्फोसिस, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मार्केट लीडर का मतलब है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कौन लीडरशिप पोजीशन लेके बैठा हुआ है। हो सकता है कि एक छोटा सा सेगमेंट हो, जैसे रबर के अंदर एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। रबर के अंदर 4% लगता है, केमिकल लगता है जो टायर को स्ट्रेंथ देता है। अब वो 4% मतलब कितनी बड़ी साइज हो गई पता है? 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है सिर्फ। 10,000 करोड़ का अगर आपको मैं पर्सपेक्टिव दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1% इज 10,000 करोड़। तो उतनी सी साइज के अंदर एक कंपनी है नॉसिल, आपने नाम सुना होगा शायद। नॉसिल 40% मार्केट शेयर लेके बैठा, तो नॉसिल इज एन इंडस्ट्री लीडर। मूविंग ऑन, ग्रोथ इन सेक्टर। जब ये पहले 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, अब मजा कब आता है इन्वेस्ट करने में? जब आपका सेक्टर इज ग्रोइंग एट डबल डिजिट्स। जब आपका सेक्टर ही डबल डिजिट पे ग्रो करेगा, समझो 12% पे, तो जो कंपनी जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, लीडर है, वो कम से कम 12% के प्लस 2-3% पे ग्रो करने की ताकत रखता है। हेंस ग्रोथ इन सेक्टर, ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना जहाँ पे सेक्टर अपने आप में टेल विंड्स हो, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही हो, या फिर मतलब वहां पे उस सेक्टर के अंदर बूम आ रखा हो। जैसे अगर पिछले 1.5-2 साल की बात करें तो फार्मा सेक्टर हो गया, सैनिटाइजर का बिजनेस ऐसा हो गया। उस टाइम पे अलग अलग कंपेटिटर्स जरूर आएंगे, बट जो लीडर है वो जरूर ग्रो करेगा। अब मैं आपको एक एक करके इनमें केस स्टडीज के साथ में बताता हूँ। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हम साथ में कवर करेंगे, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट और ग्रोथ इन सेल्स एंड अर्निंग गोस हैंड इन हैंड। एपीएल अपोलो स्टील ट्यूब्स बोल के कंपनी है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। नाउ आपको सामने सामने दिख रहा है इस कंपनी के अंदर ग्रोइंग सेल्स एंड अर्निंग हमने कैसे रिकॉग्नाइज की। जिस कंपनी की कैपेसिटी 450 मिलियन टन थी, उसने कैपेसिटी एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन किया 2 साल तक लगातार, एंड दे इंक्रीज द कैपेसिटी फ्रॉम 450 मिलियन टन टू 650 मिलियन टन। जब कंपनी केपेक्स कर रही है तो उसका वहां से केपेक्स, एक तो मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो वो सोच समझ के करता है। हमें ये चेक करना होता है, अगर केपेक्स कर रही है तो वो केपेक्स यूटिलाइज कितना हो पाएगा। अगर वो हो रहा है तो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन। आज आप एक नई फैक्ट्री लगा रहे हो, वो फैक्ट्री आज के आज नहीं कमेंस हो जाएगी, वो आज के आज आपका प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट करेगी।
साल भर तो एक अच्छी बड़ी फैक्ट्री को बनने में लगता है, उसके बाद आपकी सेल्स होनी स्टार्ट होगी। तो दिस इज वन मेट्रिक। एपीएल अपोलो ट्यूब्स ने अपना कैपेसिटी स्टार्ट किया 450 मिलियन टन से, एंड दे इंक्रीज इट टू 650 मिलियन टन। साथ साथ में उनका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो गया 300 मिलियन टन से अराउंड 450 मिलियन टन तक। क्लियर इंडिकेशन कि यहां से ग्रोथ आ रही है कंपनी के पास। इसी के अंदर कंपनी ने एक और चीज क्या की, मार्जिन प्रोफाइल चेंज कर दिया अपने प्रोडक्ट का। जहां पे कंपनी 1 टन माल बेचने के पीछे 2835 रुपीज कमाती थी ग्रॉस प्रॉफिट, कंपनी ने बोला मुझे तो 6000 रुपए कमाना है। तो उसने क्या किया, जो सिंपल कमोडिटी वाले प्रोडक्ट है ना, उसको बंद करना स्टार्ट किया, और जो स्पेशल प्रोडक्ट्स है जिसमें वो वैल्यू ऐड कर सके वैसे प्रोडक्ट्स को लाना स्टार्ट किया। कंपनी ने पेटेंट के लिए अप्लाई किया। यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल आपको दिख रहा है। एक प्री गैल्वेनाइज्ड करके उसका जो सेगमेंट था जिसमें उसका एबिटा ज्यादा था, तो उसने उस पर फोकस करना स्टार्ट किया। नए नए प्रोडक्ट्स लेके आए जिसके अंदर उसको एबिटा ज्यादा मिलता। इस तरीके से कंपनी ने अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग किया जहाँ पे उसका मार्जिन इंक्रीज हो पाए। एक कंपनी ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आई और उस पर ऐसा पेटेंट उसके पास नहीं था बट दूसरों के पास पेटेंट था, तो उन्होंने क्या बोला, नॉन कम्पीट मेरे को चाहिए पूरे इंडिया के अंदर। एंड टुडे कंपनी हैज अ मार्केट शेयर ऑफ अराउंड 50% इन द एंटायर इंडस्ट्री। इसका स्टॉक परफॉर्मेंस कैसा रहा हम आगे देखेंगे। अनदर कंपनी सीक्वेंट साइंटिफिक, अगेन विद एन एक्सीलेंट मैनेजमेंट, कंपनी ने क्या किया, मैनेजमेंट ने अपना फोकस एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट पे लाना स्टार्ट कर दिया। पहले कंपनी, ये फार्मा की कंपनी है, कंपनी क्या करती थी, एनिमल ह्यूमन दोनों का काम करती थी। कंपनी ने बोला भाई मेरी एक्सपर्टीज एनिमल फार्मा के अंदर है, मुझे ह्यूमन फार्मा का काम ही नहीं करना, उसने वो चीज बंद कर दिया। अगर आपको ये आइडिया होगा, एक क्रोसिन जो हेडेक की दवाई है वो अराउंड 10-20 रुपए की आती है, वहीं पे कैंसर की जो दवाई है वो थोड़ी महंगी आती है। आज क्वांटिटी उतनी ही दिखेगी आपको, बट कैंसर वाली मैन्युफैक्चर करने के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सीधी सी बात है, उसमें मार्जिन भी ज्यादा है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये चीज समझा रहा हूँ आपको। बट कंपनी ने क्या किया, एक कमोडिटी प्रोडक्ट से एक स्पेशल प्रोडक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। इससे क्या हुआ, आप देखेंगे कंपनी का सेल्स तो इंक्रीज हुआ ही हुआ, उसका प्रॉफिट मार्जिन जो 3% था 2018 तक, वो 10% पे पहुंच गया। और उसके ऊपर से कंपनी जोग्राफिकली एक्सपैंड भी कर दी। तो ना ही सिर्फ सेल्स इंक्रीज हुआ कंपनी का, बट कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट 9% से 17%, प्रॉफिट मार्जिन 3% से 10%। एक और कंपनी का एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, भारती एयरटेल। एग्जांपल्स क्यों ले रहे हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे ये सिर्फ थियरी है, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है। इनमें हमने आज भी इन्वेस्ट किया हुआ है और पिछले 3 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि एलोकेशन उसमें चेंज होते रहता है, बट पहले शायद हम 200 रुपए पे जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो 10% पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट करते थे, आज के टाइम पे खाली 2 से 3% इन्वेस्ट करते हैं। भारती एयरटेल, इतना बड़ा डिसरप्शन आ गया, बिकॉज द कंपनी वॉज मार्केट लीडर, इट इज स्टिल एबल टू सस्टेन। जो छोटी मोटी बाकी कंपनीज थी या तो मर्ज हो गई या फिर बिजनेस के बाहर हो गई। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ अ वेरी गुड ट्रेंड। आईआरसीटीसी बेस्ट बिजनेस है, पॉपुलेशन बढ़नी है, ट्रैवल की नीड्स बढ़नी है, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, फ्रेट कॉरिडोर बना रहा है, नई ट्रेन ला रहा है, नए कोचेस ऐड कर रहा है, मोनोपोली प्लेयर है, आपको इन्वेस्ट करना है इसके अंदर। क्यों, अगर आप पूछोगे, सिंपल सा कहानी है। अगर टिकट बुक करना है, या तो मैं विंडो पे जाऊंगा यहाँ से पिपलोद से रेलवे स्टेशन तक जो कि 15 किलोमीटर है, या फिर आई कैन book it on via Paytm or any other app via IRCTC platform. And the management is also excellent. Management को clear vision है कि उसको ये सेक्टर में परफॉर्म करना है। IRCTC के पास ही एक एक्सपीरियंस है इंडिया के अंदर टू हाउ टू रन ट्रेन्स, किसी और के पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो जो गवर्नमेंट प्राइवेट ट्रेन्स की बात कर रही है उसमें भी IRCTC माइट बी अ क्लियर विनर। ये सब हम एजुकेशन पर्पस और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए शेयर कर रहे हैं। सोलारा एक्टिव फार्मा, लास्ट एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। जैसे सीक्वेंट का भाई है ये, सीक्वेंट क्या करता था, एनिमल के अंदर उसने अपना फोकस करना स्टार्ट किया, सोलारा ने ह्यूमन के अंदर स्टार्ट किया। आप देखोगे इसका एबिटा मार्जिन, मतलब एबिटा मतलब हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, इट इंक्रीज फ्रॉम 17% टू 25% इन 2 years टाइम। इससे बड़ा क्लियर इंडिकेशन कुछ भी नहीं है। कंपनी जब स्पेशलाइज करती है, मैनेजमेंट जब उसको बोलता है कि भाई आप स्पेशलाइज करो, हमें यही करना है, हमें दूसरा कुछ नहीं करना है, तब कंपनी उसमें परफॉर्म करना स्टार्ट करती है। Now, third point in our 5G strategy, good financial. Good financial में हम क्या क्या पॉइंट देखते हैं, अमाउंट ऑफ डेट, जितना कम उतना अच्छा। कर्जा, आज कोई बड़े बुजुर्ग भी आपने सुना ही होगा कि बेटा कर्जा मत लेना, बस वो वाली कहानी है। जो कहानी हम हमारे बिजनेस में अप्लाई करते हैं वही हमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स में अप्लाई करना है। कर्जा जितना कम उतना अच्छा। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हुआ, अगर मैं माल आज बेच रहा हूं तो मुझे पेमेंट एडवांस में चाहिए, अगर ऐसा हो तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो वैसे ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जितनी कम उतनी अच्छी। तीसरा पॉइंट मैं इसमें क्या देखता हूं पता है, कि अगर मुझे 1 रुपए कमाना है
और वो 1 रुपए कमाने के लिए मुझे 1 रुपए नया लगाना है, तो मुझे ऐसा धंधा ही नहीं करना। मुझे कौन सा बिजनेस करना है कि मैं 1 रुपए लगाऊं और 10 रुपए कमा सकूं, और फिर उसी बेस के ऊपर और कमा सकूं। जैसे IRCTC एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना दिया, वहीं पे सब लोग आने वाले हैं। एक एग्जाम्पल था ये। इनका हम आगे एग्जांपल्स और देखते हैं। जब अच्छी कंपनी परफॉर्म करती है उसमें क्या बेनिफिट होता है पता है? आज APL अपोलो ट्यूब्स का नेट डेट, मतलब कंपनी के ऊपर जो नेट कर्जा था, वो 450 650 करोड़ तक। क्यों? क्योंकि कंपनी केपेक्स करते जा रही थी, 800 करोड़ तक पहुंच गया। बट अब कंपनी ने क्या किया, जैसे उसके केपेक्स सब कमेंट्स हो गए, सब कुछ पे ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। अब कितना कर्जा नेट नेट उसके पास? सिर्फ 200 करोड़ का। तो जब कर्जा कम कर दी, ये भी इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद है। IRCTC इससे अच्छे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स तो किसी कंपनी के हो ही नहीं सकते। प्योर कैश काउ बिजनेस। हीरो मोटोकॉर्प नेट कैश पे बैठा है ये कंपनी, एंड हजारों करोड़ के कैश पे है। दे हैव अ कैश ऑफ 11,000 करोड़ विद देम। सोलारा एक्टिव फार्मा अगेन अ वेरी गुड एग्जांपल। हमारे प्रीवियस एग्जांपल से ही हम यहाँ पे रिलेट करते हैं। जब कंपनी ने स्पेशलाइजेशन स्टार्ट किया ना, नेट उसके पास 750 करोड़ का कर्जा था। आज के टाइम पे इट हैज डिक्रीज्ड टू अराउंड 170 करोड़। ये हो गई बात गुड फाइनेंशियल्स की। अब बात करते हैं गुड इंडस्ट्री लीडर की। एक इंडस्ट्री लीडर में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या होता है? आज अगर मैं इंडस्ट्री लीडर हूं, हर कस्टमर मुझसे बाय करना चाहता है, हर सप्लायर मुझे सेल करना चाहता है, और हर बंदा मुझ में इन्वेस्ट भी करना चाहता है। अब मैं स्पेसिफिकली क्या करता हूं, इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए बिजनेस को 3 सेगमेंट के अंदर डिवाइड करता हूं। एक होता है लीडर, जो पिछले 3 क्वालिटी से करके मतलब ऑलरेडी फिल्टर पास कर चुका है, उसकी सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, उसका मैनेजमेंट भी अच्छा है, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बहुत स्ट्रांग है। अब उसके बाद आता है मिडिल सेगमेंट। अब मिड सेगमेंट क्या हुआ, जो लीडर तो नहीं है बट उसके जस्ट इमीडिएटली बाद में है। और तीसरा आता है देखा देखी करे हुए लोग। देखा देखी करे हुए लोग कौन होते हैं? अच्छा भाई जी, इसमें बिजनेस अच्छा हो रहा है, आप धंधो साधु छे, ए पर्सन करे छे तो हमें पण करवानु छे। वैसी वाली कहानी कि ये कमा रहा है ना, अपन को नहीं मतलब किसी और चीज से, अपन भी कर लेंगे, कमा लेंगे। जो देखा देखी में घुसा हुआ है, जिसके पास कैपिटल शायद खुद का नहीं है, तो कर्जा लेके घुसा हुआ है। प्रॉब्लम अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं आती, बट जब इंडस्ट्री के अंदर कोई भी हेडविंड आती है, मतलब कोई भी रेगुलेशन आते हैं या फिर इंडस्ट्री की डिमांड ग्रोथ थोड़ी सी भी स्लो होती है, तो सबसे पहले जो बॉटम वाले लोग हैं ना, वो लोग बिजनेस से बैंकरप्ट होते हैं। एग्जांपल से देखते हैं। APL अपोलो ट्यूब्स का जो बिजनेस है ना, सबसे सिंपल बिजनेस है। ऐसा स्टील के पाइप लेता है, उसको रोल करता है और बेचता है। कोई उसमें वैल्यूएशन नहीं करता था स्टार्टिंग में। सूरत से लेकर पुणे तक आप जाओगे, उसमें कम से कम आपको 100 प्लेयर दिख जाते हैं उसके अंदर। बट हुआ क्या, जब कोविड आया, जो छोटे मोटे प्लेयर्स थे उस टाइम पे, अच्छा स्टील सेक्टर क्या है, हेवी डेट वाला बिजनेस है, इसमें कर्जा बहुत चाहिए होता है आपको। जैसे ही उनकी साइकिल रुकी, वैसे ही क्या हो गया, आज आधे प्लेयर ठप हो गए। क्यों? 100 करोड़ का कर्जा लिया हुआ, ब्याज तो चुकाना है, बिजनेस से बाहर। दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन दिस कंपनीज हिस्ट्री। कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ी 1 रुपए से भी, बट कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया 40% से 50% ऑन पैन इंडिया लेवल। ये होता है जब आप कंपनी में इंडस्ट्री लीडर हो। सेम एग्जांपल अप्लाइज टू सूरत टेक्सटाइल मार्केट आल्सो। आज टेक्सटाइल मार्केट में अगर पहले 2000 दुकानें थी, अब के टाइम पे 1800 होगी। कस्टमर्स उतने कम नहीं हो जितने सप्लायर्स कम हो जाते हैं, और वो कस्टमर्स किसके पास जाते हैं? जिसके पास लीडरशिप पोजीशन है, जिसके पास ऑलरेडी कैपेसिटी है इन चीज को हैंडल करने की। और उस टाइम पे लीडर शांति से बैठ के खुद का बिजनेस खुद से करता है, ना वो एक्सपैंड करता है ना कुछ, पर उसका मार्केट शेयर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। सेम इज द केस विद भारती एयरटेल। आफ्टर एंट्री ऑफ जियो, भारती एयरटेल का मार्केट शेयर पहले भी कुछ इतना ही था, 27-28%। बट आफ्टर एंट्री ऑफ जियो ऑल्सो, जब उसने फ्री में सब बेचना स्टार्ट किया, उसका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ, एंड पिछले 9 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इंक्रीज ही हो रहा है। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो कि लीडर्स है ना एंजॉय करते हैं। हीरो मोटो का तो आपको पता ही है। मूविंग ऑन टू लास्ट पॉइंट, ग्रोथ इन सेक्टर। ग्रोथ इन सेक्टर इज सच एन अमेजिंग थिंग। हम जिस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो सेक्टर डबल डिजिट में ग्रो कर रहा हो, तो आपको किसी और चीज की टेंशन नहीं है। क्योंकि जब हमारी कंपनी पहले 4 पॉइंट से होकर आ रही है, तो 5वें पॉइंट में अपने आप अगर सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो आपको बूस्ट ही मिलना है। वो बूस्ट कैसे मिलेगा? अगर आज फार्मा सेक्टर अपने आप में 12% पे ग्रो कर रहा है, अभी कंपनी कम से कम 13-14% पे ग्रो करने की ताकत रखती है। क्यों? क्योंकि हमने पहले 4 पॉइंट पे इतना अच्छे से फोकस किया है। बट हमें फिर भी ऐसी इंडस्ट्री चूज करनी है जहां पे सेक्टर इज पॉजिटिवली ग्रोइंग, ना कि नेगेटिवली डिक्रीजिंग। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। हमें ऐसे ही सेक्टर्स देखने हैं जहां पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। आज से कुछ साल पहले जो श्रिम्प्स का बिजनेस था, श्रिम्प के बिजनेस में क्या होता था,
बहुत बार ऐसा हुआ कि भाई कोई बीमारी आ गई, उस चक्कर में बिजनेस ठप का ठप हो गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को एजुकेट करने का काम किया कि भाई वो फ्री में टेस्टिंग करवाने का काम किया कि भाई मेडिकल टेस्ट हम करके देंगे आपको। उससे क्या हुआ, सेक्टर के प्लेयर और ग्रो होने स्टार्ट हुए। अगर पिछले 30 साल की बात करें, गवर्नमेंट ने फार्मर्स को एजुकेट करना स्टार्ट किया कि सॉइल टेस्टिंग करवाओ, ये करवाओ, इससे आपका बेनिफिट होगा। आज शुगर सेक्टर की बात करें तो पहले एक शुगर को आपको ग्रो होने में कम से कम 15 से 18 महीने लगते थे, अब वो साइकिल ही 7-8 महीने पे आ गया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एजुकेट किया, पीछे से पुश किया कि भाई आप इसमें काम करो। जब ये चीज होती है देन मैजिक हैपेंस। आपकी कंपनी ऑलरेडी अच्छी है, पीछे से एक पुश और मिलता है कि यू गो एंड डू बिजनेस, ना कि कोई रोकने वाला आपको कि यू डोंट डू बिजनेस। अबाउट आवर स्ट्रेंथ, ये था हमारा 5G स्ट्रैटेजी, जो कि हमारा प्रोसेस था। आपने देखा हमारा स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया, हमारा एग्जॉस्टिव रिस्क प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट में हम आएंगे, स्कटलबट मतलब वही कि हम जहाँ पे जो जाके चेक करते हैं वो हम इसके साथ में आपको पीरियोडिक अपडेट्स देंगे, जो हम यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं उसमें भी कंपनीज में क्या हो रहा है, यू विल बी इंटीमेटेड वाया ईमेल्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस वाया दिस। ट्रांसपेरेंसी, हम जब मास प्लेटफॉर्म देखेंगे आपको दिखेगा आपका प्लेटफॉर्म, आपका पोर्टफोलियो ऑन अ डेली बेसिस लाइव आप देख सकते हैं। Extensive research team. We are committed to research. We are a team of 8 research analysts and we are committed to research. We do our research in house. और ये रिसर्च की वजह से ही हम लोग ये सब चीजें अप्लाई कर पा रहे हैं। हम लोग वही कर रहे हैं जो आप खुद करते, बट हम इसीलिए आपकी तरीके से ही वो कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आप बिजनेस इस तरीके से करते हैं, देन यू हैव एडेड एडवांटेज ओवर हियर। बेंचमार्क हमारा S&P BSE 500 है, ये हमने प्रीवियसली कवर किया था, जस्ट इन केस किसी ने मिस आउट किया हो। ये है रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अमेजिंग है, बट कल को समझिए कि गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल डाल दिया फार्मा के ऊपर कि भाई आप कैंसर की मेडिसिन जो आप 5,000 में बेचते थे आपको 2,500 में बेचनी पड़ेगी, तब आप क्या करोगे? या फिर किसी कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, कुछ भी हो सकता है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट शुड बी वेरी प्रॉपर। रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स कि आपका अगर मार्केट बहुत ज्यादा भाग रहा है तो आप कैसे क्या अपने आप को बचाओगे। हमने फंडामेंटली रिस्क मैनेजमेंट को कैसे रखा है हमारे इसके अंदर। हम किसी भी कंपनी के अंदर 10% से ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, ना इन्वेस्टमेंट को 10% के ऊपर जाने देते हैं। हम किसी भी सेक्टर के अंदर 25% से ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। इससे क्या होता है, जब आपका 90% पोर्टफोलियो दूसरी जगह पे इन्वेस्टेड है, तो आपका अगर वो एक बेट जो आपका बेस्ट बेट है वो भी परफॉर्म नहीं किया ना 2 साल, तो आपका पोर्टफोलियो जरूर परफॉर्म कर जाएगा। क्यों? हमने 20 कंपनी में इन्वेस्ट किया है। हम एक प्रमोटर ग्रुप की कंपनी के अंदर 20% से ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वी मेक इट अ पॉइंट टू डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो। क्यों? आप पूछोगे क्यों, अगर इतनी अच्छी कंपनी है तो सारा पैसा एक में क्यों नहीं डाल देते? सर 5,000 कंपनी है अपने पास, हमें कितनी चाहिए? 15 से 20 हाई अर्निंग ग्रोथ कंपनी, वो ढूंढने का काम अपना है, एंड अपन वो ढूंढ पाते हैं, इसलिए हम लोग उसको डाइवर्सिफाई करके चलते हैं। कमिंग बैक टू परफॉर्मेंस, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रीवियस परफॉर्मेंस चार्ट। हम लोग यूजुअली कैश कॉल्स नहीं लेते अदर देन एक्सट्रीम पीरियड ऑफ टाइम। कोविड आने से अराउंड 2 हफ्ते पहले हमने अराउंड 15% पोजीशन कैश के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। क्यों? हमने एक ट्रेंड देखा कि ग्लोबली 40% मार्केट शेयर ऑफ टूरिज्म इज कंट्रीब्यूटेड बाय चाइना। मतलब चाइना, अगर 100 लोग घूमने जाना तो 40 लोग चाइना से जाते थे। सीधी सी बात है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट हमने इसमें क्या नोटिस किया, हमारे जो इन्वेस्टमेंट थे उस टाइम पे, हमने ताज होटल्स के अंदर इन्वेस्ट किया था। ताज होटल तो पूरी दुनिया में इन्वेस्टेड है, दुनिया में उसके होटल्स है। हमने सिंपल पैटर्न ये देखा कि भाई हमको कुछ और हो ना हो, ये होटल सेक्टर शायद इफेक्ट होगा ही होगा। हमें नहीं पता था पैंडेमिक आ जाएगा इतना बड़ा, मैं फेब की बात कर रहा हूँ। हमने क्या किया, सिंगल क्लिक किया और सारे के सारे होटल, ट्रैवल स्टॉक्स या रिलेटेड सेक्टर्स में से हमने एग्जिट ले लिया। उसके बाद 1-2 हफ्ते और पोजीशन देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि यार मार्केट अच्छे से वैल्यूड है। जो रिस्क, जो एक कोविड जैसी चीज ऐसी है कि भाई 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर तो 15 जन को फैला देता है, इतना बड़ा रिस्क है। हमें नहीं पता इसका वैक्सीन कब आएगा, कब ये सच में स्प्रेड हो पाएगा कि नहीं। बिफोर WHO डिक्लेयर्ड इट एज अ पैंडेमिक, उसके अराउंड 1 वीक टू 10 डेज से पहले हमने 30% कैश पोजीशन और क्रिएट कर ली थी, which brought us to a total of around 43% कैश इन हैंड। फिर जो मार्केट गिरे, हमने उस टाइम पे उसका एडवांटेज लिया। हमने हमारे पोर्टफोलियो जर्नी के अंदर सिर्फ 2 बार कैश पोजीशन क्रिएट किया, एक कोविड से पहले और दूसरा जब इंडो चाइना के अंदर फायरिंग हुई थी। दिस फायरिंग हैपेंड आफ्टर इंडो चाइना वॉर। देन वी डोंट, द पॉइंट ये है कि हम लोग बार बार कैश पोजीशन क्रिएट नहीं करते हैं। हमारा मोटिव ये है कि अपने 3 से 4 साल के लिए जो पोर्टफोलियो है, तो बीच में जो भी कुछ भी आए, आपका अगर कंपनी अच्छी है तो उसमें परफॉर्मेंस आ जाएगा अपना, अपने आप कंपनी सस्टेन कर लेगी।
ये बेसिक आइडियोलॉजी के साथ हमने हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड किया और इस तरीके से हमने कैश में कन्वर्ट किया। कुछ जैसे हमने ऊपर एग्जांपल्स देखे थे, अब उनका परफॉर्मेंस कैसा था वो भी देख लेते हैं। जेबी केमिकल, अमेजिंग कंपनी ने केपेक्स कर रखा है, सब कुछ रेडी था। कंपनी ने क्या बोला पता है? अच्छा, जेबी केमिकल का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ज़ैंटैक का नाम सबने सुना होगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम घर में किसी को भी है तो वो ये कंपनी टैबलेट बनाती है। अब कंपनी ने क्या किया, 800 इसके सेल्स वाले एम्प्लॉय से तो उसको सीधा 1600 करने की बात कर दी। सीधी सी बात है, आज आप नया मार्केटिंग वाला बंदा रखते हो तुरंत के तुरंत, तो वो आपको सेल्स लाके देगा नहीं जितना पुराना वाला लाके दे रहा है। तो उसमें हमने बस वही डिसाइड किया कि चलो इसमें थोड़ा कंपनी को टाइम देते हैं, मैनेजमेंट इतना अच्छा है, प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, कंपनी ग्रो करने का ही प्लान कर रही है। सिंपल क्लियर इंडिकेशन, वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट 260 रुपीज। आज 1600 पे भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट थोड़ी कम क्वांटिटी बाय कर रहे हैं। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ बीइंग अ मल्टी बैगर। सीक्वेंट साइंटिफिक, इस कंपनी को 2 साल तक सिर्फ ऑब्जर्व किया था। पैंडेमिक में एक ट्रिगर आया जिस वजह से हमने इसमें इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया, एंड टुडे इट्स एट अराउंड 320 रुपीज। एपीएल अपोलो, इतनी कहानी आप सुन चुके हैं एपीएल अपोलो की, इसमें हम एंट्री के थे 180 रुपीज के आसपास, एडजस्टेड फॉर स्प्लिट। टुडे द कंपनी इज एट अराउंड 1600 रुपीज। नवीन फ्लोराइन, गुजरात की कंपनी है। ये कंपनी के पास मोनोपोली है। क्या मोनोपोली थी? रेफ्रिजरेंट के लिए जो गैस बनाते हैं ना, सिर्फ इसके पास ही लाइसेंस था, किसी के पास लाइसेंस ही नहीं था। ऐसी मोनोपोली हो गई। जो कस्टमर थे 20-20 साल का ऑर्डर देके बैठते थे कंपनी को। हमने बोला भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग था, उसने बोला कि यार मैं जो पैसा इससे कमाऊंगा ना, मैं दूसरे सेक्टर्स में लगाऊंगा, मैं अपनी और कैपेबिलिटी इंक्रीज करूंगा। दे स्टार्टेड, यहाँ से जो कमाया और प्रॉफिट वाले बिजनेस में उसने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। आज फार्मा के लिए भी काफी चीजें ये डेवलप करते हैं। सिंपल क्लियर इंडिकेशन 900 to 3700 रुपीज। मन्नापुरम फाइनेंस, कोई भी कंपनी अगर कंट्री ग्रो करती है तो फाइनेंशियल सेक्टर के थ्रू ही ग्रो करती है। बैंक को पहले ग्रो करना पड़ेगा क्योंकि क्रेडिट लेंडिंग करनी है उनको। बट मैं बहुत डरने वाला इंसान हूँ, मुझे चाहिए सेफ्टी पहले। तो मैंने बोला भाई बैंक के लिए तो क्या है, उसका लोन डूब सकता है, बट सामने अगर कोलैटरल कुछ हो ना तो अच्छा है। तो हमने डिसीजन लिया कि भाई पीछे गोल्ड की सेफ्टी है, मतलब मुझे चलेगा। तो given the safety of gold, I think Manappuram can penetrate better. तो हमने इसमें 90 रुपीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। Currently the market price is 163. Now I will hand over the call to Tejas भैया। I hope आपको ये presentation strategy समझ आई हो। हम Q&A लेंगे at the end. Now Tejas भैया will run us through the fee structure and sign up process. Thank you everyone. फी स्ट्रक्चर तू ही ले ले, मैं प्रोसेस ले लेता हूँ। ओके, तो फी स्ट्रक्चर हमारे 2 टाइप के हैं। एक फ्लैट 2% मैनेजमेंट फी। आपने आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो क्वार्टरली आपको 25 पैसा चार्ज हो जाएगा। अराउंड आपने अगर 10 लाख इन्वेस्ट किया तो आपकी फी होगी साल की 20,000 रुपए, अगर पोर्टफोलियो स्टैग्नेंट रहता है तो। एवरीथिंग इज डन ऑटोमेटिकली। सेकेंड फी स्ट्रक्चर ये है कि आप 2% के बदले हमें 1% ही देते हो और हमें बोलते हो हम आपके प्रॉफिट में भागीदार है, जितना कमाओगे उसमें से 10% ले जाना। सिंपल गिनती है आपकी। तो उसका भी हमने ऑप्शन रखा है। आप एक फिक्स्ड फी रखते हो, 1% मैनेजमेंट फी हमें देते हो साल भर की, और जो प्रॉफिट होता है सारे खर्चे काटने के बाद उसका 10% आप हमें शेयरिंग देने के लिए अलाउ करते हो। ये 2 टाइप की हमारी फी स्ट्रक्चर है। नाउ साइन अप प्रोसेस, ओवर टू तेजस भैया। Thank you, Piyush. I'll just quickly show you the sign up process, and I think there are 10 questions by one of the participant named Vrisan. So definitely I'll answer as a non-participant. I mean, as a apart from the yellow jersey team, I'll take each and every Q&A. So for the signing process, Piyush, allow me the host. Yes. So आप सबको what you need is mars.jainam.in। मैं यहीं पे आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ। So just go on mars.jainam.in, या फिर I'll suggest in some another way, you can directly go to the space.jainam.in। space.jainam.in एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जैनम के जितने भी सारे अदर प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि mars.jainam.in एक हो गया फंडामेंटल इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट के लिए,
देन यू विल फाइंड द कॉमेट, यू विल फाइंड आईपीओ के लिए अलग से प्लेटफॉर्म है, गैलेक्सी इज फॉर द म्यूचुअल फंड, पोलारिस इज फॉर द बॉन्ड। आपको आपका लेजर होल्डिंग वगैरह सब कुछ देखना हो तो उसके लिए कॉमेट है। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म इज देयर। सो आइदर आप डायरेक्टली mars.jnm.in के थ्रू लॉगिन कर सकते हो या फिर space.jnm.in के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। व्हाट यू नीड इज योर क्लाइंट कोड जो आपका JNM में होगा। जैसे कि हियर इज वन एग्जांपल ऑफ M3398, तो ये क्लाइंट का अकाउंट इज विद द मल्हार ब्रांच। सो सिंपली आप लॉगिन क्रिएट कर लेना, इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस, आपको OTP से ये प्रोसेस आपका हो जाएगा। नाउ यू कैन सी द डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बताया। सो वेस्टेड इज फॉर इन्वेस्टिंग इनटू फॉरेन इक्विटीज, पोलारिस इज मेनली फॉर द बॉन्ड मार्केट, दिस इज द स्ट्राइक वेयरबाई अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के कॉल पे डायरेक्टली काम करना हो तो ये है। लेट अस क्लिक ऑन द mars.jnm.in। तो ये हो गया अपना इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट रिलेटेड प्लेटफॉर्म। What you need to do is you just need to go on a marketplace, right? So on a marketplace आपको जितनी भी हमारी इन्वेस्टेड रिलेटेड प्रोडक्ट है जो आप ऑटोमेटिकली आप खुद ही साइन अप करके परचेस कर सकते हो, दोज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। मैं सिंपली बताऊं तो इट्स लाइक Amazon, आपको सिलेक्ट करना है और आपको बाई करना है। सो आपको यहाँ पे मिलेगा अल्फा 11 जो हमारी प्रोडक्ट है, आइक्योनिक, मिस्टर मार्केट और JNM YJ Boost. So you just need to click on YJ Boost, right? यहाँ पर क्लिक करने से आपको जो भी प्रोडक्ट होगा, लेट्स से अभी हम लोग ने क्लिक किया है YJ Boost, तो आपको YJ Boost का पूरा डिटेल इधर मिल जाएगा। मिनिमम अमाउंट इज 5 लाख रुपीज। रिस्क ये अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है, रिकमेंडेड टाइम होराइजन 4 to 5 years और लाइव जो डेटा है दैट इज 48% CAGR। आप यहाँ पर 6 month 1 year मैक्सिमम क्लिक करके आप परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने से यू विल फाइंड द चार्ट वाला डेटा, देन यहाँ पे आपको मिलेगा सेक्टर एंड स्टॉक वाइज अलोकेशंस। लेट्स से आप JNM के क्लाइंट हो, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, स्टिल यू वांट टू नो व्हाट इज द पोर्टफोलियो, तो आप यहाँ पे जाके ये क्लिक करके देख सकते हो। सूनर और लेटर हम लोग शायद ये फैसिलिटी बंद करने वाले हैं, बिकॉज हम लोग ये फैसिलिटी सिर्फ उन्हीं क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे दोज हु रियली वांट टू इन्वेस्ट विद दिस। सो लेट्स से जैसे पीयूष ने बताया उस हिसाब से YJ Boost having 3% allocation is into APL Apollo, then 10% is into plastic products, so Apollo Pipe, Supreme is there. So he was talking about pharmaceutical and Sequence Scientific kind of companies. So pharma में he have JB Chem, Solara, Syngene. So sector wise, stock wise, you'll find the allocations. By clicking over here, you will get the fact sheet, right? So जो पूरा fact sheet पीयूष ने present किया है, but यहाँ पर on one page आपको ये fact sheet मिल जाएगा। So आप जब भी क्लाइंट के पास जाते हो, यहाँ पर मेरे जितने भी सब ब्रोकर्स अवेलेबल है, चैनल पार्टनर्स अवेलेबल है, जितने भी मेरे ब्रांच मैनेजर अवेलेबल है, तो आप यहाँ से क्लाइंट को ये फैक्ट शीट फॉरवर्ड कर सकते हो। दो द प्रेजेंटेशन इज अबाउट 39-40 स्लाइड, बट वो पूरा 40 स्लाइड का क्रक्स ये एक पेज की फैक्ट शीट में आपको मिल जाएगा। कमिंग बैक टू mars.jnm.in, यहाँ पर क्लिक करने से आपको प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियो या न्यूज मिलेगा। जैसे कि पीयूष वाज टॉकिंग ऑन सम टेलीकॉम कंपनी, तो जियो इज इनटू पार्ट ऑफ टेलीकॉम, तो उसके पोर्टफोलियो रिलेटेड जो भी स्टॉक्स होंगे उसमें अगर कोई न्यूज आया है विच इज पब्लिकली अवेलेबल ऑन BSE, NSE और मनी कंट्रोल, तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज भी यहाँ पर आ जाएगा। एंड बाय क्लिकिंग ओवर हियर, यहाँ पर प्रोडक्ट रिलेटेड 1 या 2 मिनट का यू विल फाइंड अ वीडियो। सो दिस इज अ सिंपल बेसिक अबाउट द प्रोडक्ट। नाउ अगर किसी को भी इन्वेस्टमेंट करना हो, सिंपल यहाँ पर 5 lakhs का अमाउंट इज देयर, you just need to click invest. Say for example, if anybody want to invest with 10 lakhs, just go and change the amount, or let's say 7 lakhs, but minimum 5 lakhs के नीचे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोई भी क्लाइंट को मिनिमम टिकट साइज से इन्वेस्ट करना है, so 5 lakh, click on invest, right? So
So इस तरह से स्टॉक का अलोकेशन आ जाएगा. सो यू जस्ट नीड टू क्लिक पे एंड प्रोसीड, जो आपको लेके जाएगा आपके नेट बैंकिंग पे, या फिर आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा वो यूज हो जाएगा. एंड द ब्यूटी अबाउट दिस प्लेटफॉर्म इज कि कोई भी डीलर को, कोई भी सब ब्रोकर को ट्रेड लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है. दिस इज गोइंग टू बी ऑटोमेटिक ट्रेड, वो हो जाएगा. सो दिस इज सिंपल वे में आप ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो. फीस इज ऑलरेडी मेंशन बाय द पीयूष, फिक्स मैनेजमेंट फीस एंड जो भी स्ट्रक्चर है वो. सो now I think we should open the floor for the Q&A. First, I will take some of the questions जो यहाँ पर chat box में है. So मैं quickly go through करता हूँ. जो भी questions important होंगे, priority वाले होंगे, तो May and Piyush are available. So let us start with some of the questions. मीनवेल अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो. So yeah, I think we'll take all 9-10 questions by Brisan. Just Just allow me 1 or 2 minutes to check with your questions. I'm just scrolling down. Ketul का question है, I am late in meeting. I missed stocks. Or can you give me some short-term stocks? Ketul, we can give you the presentation. हम लोग आपको presentation sheet वगैरह provide कर सकते हैं. Even ये meeting का recording भी हो रहा है. But ये product is mainly for the long term, so we do not have any kind of short term stock idea. But what I suggest you कि आप जैनम का Telegram research का जो Telegram channel है, you can join. किरण जानी is the head of technical research. तो हमारे कुछ भी technical bets या short term pick जो होता है, तो आपको वहां से मिल जाएगा. Vrisan का question is on a sugar sector. Growth is because of can production cycle or how the questionable statement. So over to you for these questions. हम स्टॉक स्पेसिफिक चीजों में अभी एक बार नहीं जाएंगे, बट स्टिल टू आंसर योर क्वेश्चन विशाल, उसमें बहुत सारी चीजें थी. फॉर एजुकेशनल पर्पस की जब एक सेक्टर टेलविंड आता है तब कैसे एक कंपनी को बेनिफिट होता है, मेरा पॉइंट वो था उसमें समझाने का. गवर्नमेंट ने एथेनॉल का परसेंटेज ब्लेंडिंग स्टार्ट इंक्रीज कर दिया. देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि उसमें इन्वॉल्व थी. तो हम स्टॉक स्पेसिफिक चीजों में अभी नहीं जाएंगे. वी विल रिमेन ऑन द स्ट्रेटेजी एंड द आइडियोलॉजी वाइज टू. एंड आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू आपके बाकी जो क्वेश्चंस है, जैसे आपका जो क्वेश्चन है कि हमने सेबी को क्या फाइलिंग किया क्या नहीं, आप क्लियरली देख सकते हैं ये बैक टेस्टेड रिजल्ट्स है. हालांकि जैनम में वो लाइव पोर्टफोलियो था. इफ यू आर इंटरेस्टेड वी आर more than willing to share all the transaction details with you, but that is not the point of the thing. मैं आपको ना रिटर्न पे जाने के लिए बोल रहा हूँ किसी को कि आप ये रिटर्न देख के रिटर्न एक्सपेक्ट करिए. आप प्रोसेस समझिए. अगर ये प्रोसेस पर आपको कॉन्फिडेंस आता है, अगर आप धंधा इस तरीके से करते हैं, फिर आपको लगता है इसमें से कमाई होगी, then this is beneficial for you, not the return. Thank you. Another question is by Brisan. Please show your folio holding statement to prove your comment that you exited in February 2020. Vishal will be surely sharing the statement with you. Please write your email ID and phone number on the chat box. Tejas, I think we can do that afterward. Sure. We just have to share the transaction statement with you. That's nothing. Okay, so Brisan के ही बाकी के questions से that let me go through is what is the inception time? Non-presenting host please reply. So हम लोग ने जो start किया था with Piyush was into just allow me 1 minute. I can show you the live portfolio. Just give me 1 minute. Till then we can answer the question. I'll do one thing. मैं को chat में से देख के answer कर देता हूँ.
by 2-3 years of investment How do horizon, you how plan do you to plan churn the to churn the portfolio? portfolio? Will it be Will it be close-ended close-ended or or open-ended? open-ended? You You mentioned mentioned 60-20% 60-20% return. return. Does SEBI allow Does this? SEBI allow Do you this? guarantee Do you such a guarantee return? such a What if return? it is What below if it is below 16% at the end of 16% 2-3 at years? end of 2-3 years? Fine. Fine. So, So, we Brisan, are a we SEBI are a SEBI registered registered PMS, we are a PMS, SEBI we are a registered SEBI registered research analyst, research analyst, and all and this all we this are we are doing as doing per the as per the compliance. compliance. So, SEBI सेबी का का कोई कोई इश्यू इश्यू नहीं नहीं है. है. सेकंड, सेकंड, हम हम लोग लोग ने ने कहीं कहीं पे पे भी भी ये ये मेंशन मेंशन नहीं नहीं किया किया है है कि कि दिस दिस 16-20% 16-20% रिटर्न्स रिटर्न्स आर आर द द गारंटेड, गारंटेड, और और इक्विटी इक्विटी में में गारंटी गारंटी जैसा जैसा कोई कोई वर्ड वर्ड होता होता ही ही नहीं. नहीं है. बट But यस, yes, व्हाट whatever the prior experience of the PUs is there, how he select the stocks, how he allocate the stocks into a sector specific. Say for example, चाहे उसको कोई स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा हो, he do not go beyond certain percentage weightage of that particular stock. What is that percentage, Piyush? 10%. 10%. चाहे उसको गर्लफ्रेंड से ज्यादा उसको प्यार वो स्टॉक के लिए क्यों ना हो, वो 10% से अलोकेट नहीं करेगा. एंड फॉर अ सेक्टर स्पेसिफिक कैप इज देयर, सेक्टर स्पेसिफिक 25%. 25%. दो दो बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर जो इंडिया में है इज अराउंड 37-40%. सो दिस इज हाउ ही मैनेज द रिस्क. और अगर 16-20% के नीचे रिटर्न आता है तो उसका कोई गारंटी नहीं है कंपेंसेट करने का. सेकंड क्वेश्चन, डू यू कीप द फुल? यस ब्रिसान, आपको ये पूरा पोर्टफोलियो mars.jainam.in पे आपको पूरा होल्डिंग ही मिल जाएगा. इनफैक्ट यू विल गेट ऑल द ईमेल फ्रॉम द सेबी, एनएससी, बीएससी और फ्रॉम द जैनम, जहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि हम लोगों ने क्या लिया है, कितना क्वांटिटी लिया है, आप ही के अकाउंट में ये काम होगा. एंड mars.jainam.in के थ्रू आपको आपका पूरा लाइव पोर्टफोलियो मिल जाएगा. ये पोर्टफोलियो में ऐसा कुछ भी सी नहीं है कि आपको आपका हम लोग ने क्या स्टॉक्स लिया है वो आपको 1 महीने बाद या 1 क्वार्टर के बाद मिलेगा, जो इंडिया में कई सारे फंड मैनेजर ऐसा करते हैं. बट इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड इट इज डिक्लेयर एवरी. आपके सामने पूरा स्टॉक का लोकेशन आ गया, सेक्टर का लोकेशन आ गया था. Question 3, are you SEBI registered? Yes, we are a SEBI registered. We can answer this question in person later. No, I think those all our questions are and should be benefited to all the participants. Right. Did you declare the folio holding filing to SEBI? If yes, please show your folio filing to SEBI now. So Visan, every year ending जो हमें filing करना होता है, that we do with the compliance department. अगर ये PMS strategy होता तो we need to report to SEBI what are the strategy, what are the philosophy and everything. Since this is the model portfolio, तो SEBI को इसका reporting नहीं होता है, but at the end of you know the yearly क्या कितने client थे, what kind of fees we earn, तो वो सब reporting होता है. Fees charges already पीयूष ने बता दिया है. Does one need to hold a demat or you can give holding directly with registrar? No. If you want to work with this portfolio, तो आपका account जैनम में trading और demat account आपके पास होना चाहिए, because if we take any trade, तो वो आपको alert तुरंत ही मिल जाएगा. म्यूचुअल फंड से ये कैसे अलग है? So Brisan, since all of your questions are very logical and rational, so I am expecting, I hope you know about how the mutual fund industry works. So basically if you go with any good mutual fund or any AMC, आपको पता चलेगा कि बॉस उसमें 60-70 स्टॉक्स होते हैं. PUC is not buying a companies more than 25 companies, right? उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि out of this 60-70 stocks, the first 10 stocks or the first 15 stocks is all about your portfolio. बाकी का वो सिर्फ सैटेलाइट ही हो गया, right? म्यूचुअल फंड में आपको ये पता चलेगा कि उनका जो बेंचमार्क है, वो बेंचमार्क वो इंडेक्स में जो हाई होल्डिंग होगा. सो लेट्स से यू आर इन्वेस्टिंग इनटू लार्ज कैप. सो आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ म्यूचुअल फंड इन माय लाइफ के जिसके पोर्टफोलियो में रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक नहीं होगा, बिकॉज दे हैव टू बाय दिस. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है. इट इज अ मल्टी कैप फंड. अगर पीयूष को अच्छा अपॉर्चुनिटीज लगता है कोई 3,000-4,000 करोड़ वाली कंपनी में, ही कैन इन्वेस्ट. म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं कर सकते. दे हैव टू गो विद देयर मैंडेट. सो मल्टी कैप इज इक्वल टू फ्लेक्सिबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू कंसीडर बेंचमार्क इंडेक्स? बीएससी, S&P 500? पीयूष? Yes. यस. सो रिसान, आप बीएससी S&P 500 ले लो या एनएससी S&P 500 ले लो,
there are no major changes except one or two companies. So yes, our benchmark is a BSE S&P 500, and the main objective of Jainam YJ Boost portfolio is to beat the BSE 500. And the second meaning इसका ये हुआ कि whatever the company will select in this 20 to 25 stocks portfolio, those must be from the BSE 500. So how do you decide the basis of weightage of your stock? How much is sectoral? तो मैंने सेक्टर का आपको बता दिया, 25% से ज्यादा नहीं, सिंगल स्टॉक का 10% से ज्यादा नहीं. Now ये जो स्टॉक और सेक्टर का डिसीजन होता है, तो पीयूष has started his speech by saying कि it is a scientific allocations, but उसमें उनका एक्सपीरियंस कौन से स्टॉक्स पे कन्विक्शन ज्यादा है. मैं आपको दूसरी तरह से एक्सप्लेन करूं तो हमारे साथ रेस में इस BSE 500, राइट. आवर ऑब्जेक्टिव इज कि वो रेस में हमें BSE 500 को हराना है. तो व्हाट पीयूष इज वर्किंग ऑन दिस पोर्टफोलियो इज कि BSE 500 में कौन से लिमिटेशंस है. लेट्स से BSE 500 में एनिमल फार्मर रिलेटेड कंपनी जो है उसका वेटेज एकदम कम है, बट द एनिमल फार्मा कंपनी का फंडामेंटल इज गुड, ऑटोमेटिकली पीयूष उसका वेटेज ज्यादा रखेगा. इफ इट परफॉर्म वेल तो वो BSE 500 से ज्यादा होगा. लेट्स से BSE 500 में देयर इज वन वेरी गुड कंपनी जिसका वेटेज ज्यादा है, या फिर अ कंपनी जिसका वेटेज ज्यादा है जहां पर पीयूष बुलिश नहीं है. BSE 500 में अगर वो कंपनी परफॉर्म नहीं करता है तो BSE 500 का रिटर्न नीचे जाएगा, और उस तरह की कंपनी पीयूष या तो पोर्टफोलियो में अवॉइड ही करेगा या तो it will buy with just a minuscule weightage. So this is how allocations का पूरा गेम होता है. Questions number 9. Sorry, please show your folio holding. Vrisan, मैंने पूरा पोर्टफोलियो होल्डिंग आपको दिखा दिया थ्रू mars.jainam.in. अगर यही क्वेश्चंस आपका रिपीट होगा तो एट द एंड ऑफ द Q&A सेशन आई विल शो यू अगेन द एंटायर पोर्टफोलियो. I hope Vrisan, I answered all of your questions. Let me just go through the another questions if anyone from the participants. एनुअल फीस वुड बी, एनुअल फीस आपका जो लगेगा वो AUM पे लगेगा, आपका एवरेज मार्केट वैल्यू पे लगेगा. व्हाट इफ ऑलरेडी गुड पोर्टफोलियो, अगर मतलब प्रेक्षा का ये क्वेश्चन है कि अगर किसी क्लाइंट के पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है तो प्लीज क्या आप उसको स्टडी करके एडवाइस करोगे? Hi Preksha, of course you can send your presentation to mention email ID. हम chat box पे email ID लिखते हैं, जैनन का ही है. We'll get back to you with your portfolio review. For that we need to have a 1-to-1 session. Preksha, yes, this facility is available with the Jainam. So हमने Jainam की ओर से एक सर्विस लॉन्च किया है जिसका नाम है रोबोनोम, जहां पर there is one detailed report, जो रिपोर्ट का नाम है SDR, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशंस. तो ये सर्विस अवेलेबल है. इट इज समथिंग लाइक डॉक्टर पोर्टफोलियो. तो अगर आपका कोई भी पोर्टफोलियो हो तो वी विल चेक एंड रिवर्ट यू के कौन से स्टॉक आपको रखने चाहिए, कौन से बेच देने चाहिए, एंड व्हाट शुड बी द आइडियल अलोकेशंस ऑन अ सेक्टर वाइज. पुष्पराज का क्वेश्चन इज इट एन अवेलेबल ऑन स्मॉल केस प्लेटफॉर्म? अभी तो अवेलेबल नहीं है. सो ये प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन द mars.jainam.in. व्हाट इज द शेयरिंग परसेंटेज विथ ब्रोकर? सालिन, इफ यू आर अ ब्रोकर तो हमारा जो भी स्ट्रक्चर ऑलरेडी जो हमारी बाकी की प्रोडक्ट है नानोलिया में या फिर, तो द सेम शेयरिंग स्ट्रक्चर रहेगा येलो जर्सी बूस्ट पोर्टफोलियो के लिए. Thank you, Bhavesh bhai, for your comment. What is your stock exit criteria? Haresh ka question is there, so I think you should take these questions. Excellent question, Harish. What is our stock exit criteria? Entry सबको फिर भी पता होती है. Exit is more important, I guess. And exit के बाद में re-entry is much more difficult. But अच्छा, exit को आप ऐसे सोचिए, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, आपने समझो होटल बिजनेस स्टार्ट किया, मैकडॉनल्ड्स आपने ही स्टार्ट किया था, आज आपने मैकडॉनल्ड्स की एक ब्रांच से 1000 ब्रांच कर दी, और आप मैकडॉनल्ड्स बेचोगे क्या? शायद.
बिल्कुल मैं तो बेच दूंगा। कब? जब मुझे कोई और बेटर बिजनेस मिलेगा तब। मुझे कोई और ऐसा बिजनेस मिल रहा है जहां पे मेरे को ग्रोथ मैकडॉनल्ड्स से ज्यादा अच्छी मिलेगी तो मैं उसको बेचूंगा। दूसरा पॉइंट, अगर आज मैकडॉनल्ड्स की मेरी एक फ्रेंचाइजी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो 1000 होने के बाद अगर मेरी वैल्यू 1 लाख करोड़ हो जाती है, तो मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा इतना महंगा क्यों हो गया, तब भी मैं बेच दूंगा उसको, क्योंकि मुझे सस्ते में दूसरे बिजनेस करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। ये 2-3 क्राइटेरिया है। जब हमें पास अलग कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिले तब, जब हमें उसकी वैल्यूएशन पे कंफर्ट नहीं आ रहा तब, और तीसरा, आज अगर मैकडॉनल्ड्स कपड़े बनाने लग जाए तो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बर्गर बनाता है अच्छी बात है, कपड़े बनाएगा मुझे आइडिया नहीं है कैसा परफॉर्म करेगा। जब कंपनी अपने कोर बिजनेस से बाहर जाके कुछ ऐसा करने लगे जहां मुझे आइडिया नहीं है वो क्या करेगा, शायद बेस्ट कपड़े बना सकता है वो, बट मुझे उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आज नहीं है उस चीज के लिए। तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब बिजनेस अपने कोर कॉम्पिटेंसी के बाहर जाता है तब हम उसमें इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करने का कंसिडर करते हैं। रीबैलेंसिंग इज आल्सो ए वन थिंग। आपने कंपनी में 10 रुपए इन्वेस्ट किए, 500 रुपए का एलोकेशन ऊपर हो गया, तो हम रीबैलेंस करते हैं उसका एग्जिट कैसे। थैंक यू पीयूष। देवराज भाई, यस, आपने जो भी समझा वो सही समझा है कि इसमें शेयरिंग जो नामनोलिया का है उस तरह से ही येलो जर्सी के साथ भी आपका शेयरिंग होगा। अभिजीत का क्वेश्चन है, पीयूष आप आईआरसीटीसी में एंटर कब हुए थे? आईआरसीटीसी में सर हम लोग अराउंड 900 लेवल्स पे एंटर किए थे आफ्टर द आईपीओ। देन प्रज्ञेश का क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस इफ पीयूष इज नॉट अराउंड, विल द फंड स्टिल परफॉर्म? एक्सेलेंट क्वेश्चन। नाउ ये कब हो पाएगा? हमारा पूरा स्ट्रैटेजी जो मैंने 500 पॉइंट की चेकलिस्ट बनाई है वो किस लिए है? आज अगर मुझे ही करना है तो मुझे तो मैं अपने मन से कुछ भी कर सकता हूँ, बट दैट इज नॉट हाउ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट शुड वर्क। हमने इसलिए प्रोसेस ड्रिवन सब चीजें को यहाँ पे ड्राइव करके रखा है। आज when you go through the checklist, this is an exclusive thing which we will only share with our partners and brokers जो यहाँ पे जैनम के साथ है। आप एक बार चेकलिस्ट के थ्रू जाइए, जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, ये प्रोसेस ने रिटर्न दिया है, ना कि वाइस वर्सा। आज रिटर्न है इसलिए हम वो प्रोसेस पे नहीं गए हैं, वो प्रोसेस है इसलिए ये रिटर्न आ रहा है। टिल द टाइम द टीम इज एबल टू टेक केयर ऑफ दैट प्रोसेस, कोई ज्यादा कर्जे वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करती, अपने हाई ग्रोथ के ऊपर ही फोकस करती है, this system will work on automatic mode. Risk management criteria is also there. आप अगर समझो कोई बहुत अच्छी कंपनी लग गई, उसमें 50% पोर्टफोलियो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, till those criteria are maintained, and मैंने आपसे जो शेयर किया है डियर फ्रेंड्स, आप प्लीज समझिए, this is just tip of the iceberg. 500 pointers per company is very in-depth thing which cannot be discussed over the Zoom call, or it takes at least 2 to 3 months to investigate any company. So it takes us a lot of time and effort. Once that process is fulfilled, then we come to any conclusion on investment decision making. And the entire thing is systematic. Promoter holding को मैंने 25% का नंबर दिया हुआ, ग्रोथ को 20% का नंबर दिया हुआ, ये सब बेसिक फिल्टर्स हैं, यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। Fine. So I think सारे questions is already covered. There are no new questions. So आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन राइट इनटू चैट बॉक्स। एंड विनीत जैन का एक क्वेश्चन है, ऑन एन एवरेज हाउ मच कैन वी एक्सपेक्ट पर ईयर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? सो सर पर ईयर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। क्यों? ये आपका फिक्स्ड इनकम वाला पोर्टफोलियो नहीं है। आज आप एक चीज समझिए, आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है, आपको मैं 4 से 5 साल का टाइम होराइजन मांग रहा हूँ, अब उसमें ग्रोथ कहाँ से आएगी वो आप समझिए। 6-7% का इंडिया के अंदर जीडीपी ग्रोथ नहीं होती है, 5-6% का इन्फ्लेशन है, 12% तो आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अब अगर इतनी एफर्ट लेके ऐसी कंपनीज आप सिलेक्ट कर रहे हो, इतना डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो मैं मानता हूँ 3 से 4% का अल्फा ओवर 4 to 5 years you can try and expect to generate. You can only try for that. तो अगर आप 4 से 5 साल का टाइम रखते हो, 4 से 5 साल क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट साइकिल इतना लंबा होता है, 5-6 साल का एक इन्वेस्टमेंट साइकिल या बिजनेस साइकिल रहता है, तो उस साइकिल को पूरा कंप्लीट करने में 4 से 5 साल लगते हैं मिनिमम, इसलिए उतना टाइम होराइजन। एंड हेंस दिस sir, email ID of Jainam will be shared. Suppose there are 100 investors in this portfolio, already average buy sell price.
हरीश जी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, बट ऊपर हमने आपको वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, कोई ईमेल आईडी और फोन नंबर भी हम देते हैं, आप उसमें आपको कॉल करके पूछ सकते हैं। हरीश जी, मैं जिस हिसाब से क्वेश्चंस को समझता हूँ तो उसमें हर एक इन्वेस्टर का एंट्री के हिसाब से बाइंग कॉस्ट वुड बी डिफरेंट बिकॉज ये मॉडल पोर्टफोलियो है। तो लेट्स से अगर आज आपने इन्वेस्ट किया तो आप में शायद सीक्वेंस साइंटिफिक एक्स अमाउंट में आएगा, कोई बंदा 6 महीने बाद आता है तो उसमें शायद सीक्वेंस साइंटिफिक एक्स प्लस 10% या एक्स माइनस वो टाइम पे जो मार्केट प्राइस होगी वो उस हिसाब से आएगा। बट एज वी ट्राई टू मेंटेन के सारे इन्वेस्टर्स में पोर्टफोलियो के सारे जो स्टॉक्स है वो रहने चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस। वेटेज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो मान के चलिए आपने सीक्वेंस साइंटिफिक लिया, प्राइस बढ़ गया और हमने किसी और में सिंजन इंटरनेशनल ले लिया, किसी में बायोकॉन ले लिया, तो दिस इज हाउ पोर्टफोलियो वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। बट अगर पीयूष एज अ फंड मैनेजर इज स्टिल बुलिश ऑन द सीक्वेंस साइंटिफिक बट थोड़ा वैल्यूएशंस का कंसर्न है तो ही विल एडजस्ट द वेटेज, बट सीक्वेंस साइंटिफिक वुड बी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो फॉर एवरी इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर इट इज नॉट अ पूल कंसेप्ट, इट इज द इंडिविजुअल क्लाइंट में ही लिया जाएगा। तो इंडिविजुअल क्लाइंट का एंट्री जब जब होगा अकॉर्डिंग टू मार्केट का क्या लेवल है, वो पीयूष का जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स का क्या प्राइस है, उस हिसाब से वेटेज आपने दिया जाएगा और उसी हिसाब से आपके अकाउंट में इंडिविजुअल जो भी कॉस्ट आएगा वो आएगा। इट इज नॉट अ पूल कंसेप्ट। ओके, लास्ट आई थिंक वन क्वेश्चन इज ऑन अ स्टॉक स्पेसिफिक के पीयूष आपने आईआरसीटीसी क्यों लिया और व्हाई नॉट आईआरएफसी? Again, not going into any stock specific questions right now. This can be discussed offline. राघव, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट, सो आज मतलब अब तो ऐसा हो गया कि योर होल्डिंग वुड बी इन डीमैट अकाउंट, सो मोस्टली आपके डिविडेंड्स आपके बैंक अकाउंट में ही जाएगा, तो वो डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट का शायद ये मॉडल फंड में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। निकुंज का क्वेश्चन है कि आर यू कंसीडर एनी ईवी सेगमेंट इन योर पोर्टफोलियो पीयूष, एनी ईवी रिलेटेड स्टॉक्स? Not as of now. Okay. Apurva Agrawal ka question is, could you give a brief on how you validate your research data? Apurva, again, very good question. कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते वक्त आपको जब डेटा आप इकट्ठा करते हो, तो आज हम 20 से 25 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि हम 20 से 25 कंपनी ही जानते हैं। हम कम से कम जो 300 स्टॉक का अपना फिल्टर बना था ना, उसमें से 100 कंपनीज को ट्रैक करते हैं। आज सीक्वेंस साइंटिफिक के एग्जांपल में हमने उस कंपनी को अराउंड 2 से 2.5 साल सिर्फ ऑब्जर्व किया, मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो कर रहा है कि नहीं। आज मैनेजमेंट कमिट तो कर रहा है कि वो EBITDA इंक्रीज करेगा, बेटर प्रोडक्ट्स लेके आएगा। जब वो चीज ट्रिगर आना स्टार्ट होती है तब हम उसको पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन पे। दैट इज वेयर अ सेंटिमेंट ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एंटर्स। सब कुछ फैक्ट ड्रिवन होता या सब कुछ फॉर्मूला ड्रिवन होता तो मेरी जरूरत ही नहीं होती, ना किसी टीम की जरूरत होती। फॉर्मूलाज डाल दो, आप इनपुट्स डाल दो और आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाता है। बट दैट इज नॉट द स्ट्रैटेजी। कोई भी रिसर्च को वैलिडेट करने के लिए आपको टाइम चाहिए, हेंस इट गोज इन हैंड विद आपका टाइम होराइजन ऑफ पोर्टफोलियो, 2 से 3 साल मिनिमम, एंड वी सजेस्ट 5 years. Thank you everyone. I'll hand over to Tejas as it was the last question. Thank you Ankur for your positive comment. Devraj sir, thank you for your compliment. Have you back tested this strategy over 5 or 10 year period? Piyush? Sir, the back tested thing is over the last 3 years. वो भी हमने proprietary funds invest करके, जैनम के funds invest करके उसको live किया है। जो भी बैक टेस्टिंग है वो नंबर्स के फॉर्म में होती है, या फिर फॉर्मूलाज अगर मैं बैक टेस्टिंग इन्वेस्ट करूँ तो ऑफ कोर्स ये स्ट्रैटेजी डिराइव करने के लिए हमें काफी इयर्स ऑफ रिसर्च लगी, उसके बाद ये स्ट्रैटेजी बनी। तो यस, यू कैन कॉल इट गुड इनफ टेस्टिंग ऑफ 5 to 10 years, बट टू प्रूव दैट जो हमारे पास डेटा है वो नवंबर 2018 के साथ में है, तो हमने लाइव पोर्टफोलियो को परफॉर्म करना ट्राई किया इन प्रोप्राइटरी अकाउंट्स।
Thank you everyone for your amazing comments and for amazing questions. I'll hand over now to I'll take 1 minute to show you the live performance of the yellow jersey that we started in our pro account. Just give me 1 minute. Yeah. So this is the overall. So we started with 25 lakhs on 21st November 2019. This is the first tranche of my investment. So that 25 lakh has become 52 lakhs, right? You can see the value and you can see the script. So, but actually, I'm not interested to show you the stocks कौन सा लिया कितना percentage rise हुआ, and give me another 30 seconds to show me the performance another 25 lakh rupees का tranches जो हम लोग ने दिया था. Just a minute. तो एक 25 लाख नवंबर में देने के बाद द सेकंड 25 lakhs हम लोग ने दिया था मार्च 21, दैट इज एग्जैक्टली बिफोर 3.5 months. So it has been grown 25 lakhs to 33 lakhs. So the overall performance, this is the live performance. You can, I mean, I can show you all the transactions and vagera, but it is on demand on request. So thank you for your time. We are still 90 plus participants, and I hope